بسم اللہ الرحمن الرحیم علی اللہ مدد فرمان واحد القہار علی اللہ مدد فرمان الحی 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 الحي 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 آؤ ہے نارش مجھ کو رونا ہے آؤ ہے نارش مجھ کو رونا ہے زنگ غفلت سے دل کو دھونا ہے آؤ ہے نارش مجھ کو رونا ہے اس میں اعظم سے میری کچھ وفا نہ ہوئی اس میں اعظم سے میری کچھ وفا نہ ہوئی آخرن محو ہو کے اس میں کھونا ہے آؤ ہے نارش مجھ کو رونا ہے مجھ میں کیوں عاشقانہ گریہ نہیں مجھ میں کیوں عاشقانہ گریہ نہیں یہ خطا ہے اس خطا پہ رونا ہے آؤ ہے نارش مجھ کو رونا ہے جب قیامت ہوئی ہے سر پہ سوار جب قیامت ہوئی ہے سر پہ سوار کیا تمہیں اس گھڑی میں سونا ہے آؤ ہے نارش مجھ کو رونا ہے عاشقان علی برائے علی عاشقان علی برائے علی تم کو مل کر مجھے رلانا ہے آؤ ہے نارش مجھ کو رونا ہے تیرا دل بت کدا ہوا ہے نصیب تیرا دل بت کدا ہوا ہے نصیب آتش عشق سے اس کو جلانا ہے آؤ ہے نارش مجھ کو رونا ہے ایسے بھی موقع آتے ہیں کہ دل نرم نہیں ہوتا دل میں اتنی سختی چھا جاتی ہے کہ آنسوؤں کو بلانا پڑتا ہے ان آنسوؤں کو آواز دینی پڑتی ہے عشق سے بلانا پڑتا ہے کیونکہ بغیر آنسوؤں کے دل کی صفائی نہیں ہوتی سارا دن جب دنیا میں رہتے ہیں دنیا کے اثرات دل پہ لیتے ہیں
تو بہت ساری گندگی دل پہ چھا جاتی ہے، اور پھر جب مومن کو موقع ملے تو وہ آنسوؤں کو پکارے، گریہ ازاری کرے، تنہائی میں اور دوستوں کے ساتھ ان آنسوؤں کو پکارے کہ وہ عشق کے آنسو آئیں، زار و قطار آئیں۔ کیا ہی ہو جب کوئی تکلیف میں روئے تو کیا بڑی بات ہے، جب امتحانات سے گزرے اور ہم گریہ ازاری کریں تو کیا بات ہے۔ بات تو اس وقت ہے جب کوئی تکلیف نہ ہو، آسائش میں ہو اور ہم گریہ ازاری کریں، بہت مشکل ہے ایسا، اسی لیے آنسوؤں کو بلانا پڑتا ہے، آنسوؤں کو پکارنا پڑتا ہے، عشق سے بلانا پڑتا ہے، کیونکہ دل کی صفائی کے لیے کوئی پانی کام نہیں آتا، صرف آنکھوں سے بہتا ہوا آنسو، وہی پانی دل کی صفائی کرتا ہے۔ امام سے عاشقی کی چاہت، وہ پاکوں کا پاک اور ہم گنہگار، بے حد گنہگار، اپنے گناہوں کو ان آنسوؤں سے دھونا ہے، ان گناہوں کی پاکیزگی کرنی ہے، گندگی کو صاف کرنا ہے۔ کتنا مشکل ہے مولا، کتنا مشکل ہے مولا، وہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے آنسو آتے ہیں، جن پہ امتحان ہوتے ہیں اور وہ زار و قطار روتے ہیں، وہ جانتے نہیں ہیں کتنی تیزی سے وہ امام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ راز سمجھ جائیں ہم کہ آنسوؤں سے قربت مولا کی ہوتی ہے، جب جب بھی امتحان ہو ہم پہ ہم کہیں شکر للہ والحمد للہ، اور تکلیف کے مارے زار و قطار روئیں اور ذکر کریں اور اس سے قریب ہوتے چلے جائیں، کیونکہ جب سکھ میں ہوتے ہیں تو بھولنے کی بیماری ہوتی ہے، جب سکھ میں ہوتے ہیں تو شیطان حاوی ہو جاتا ہے، مولا کو بھلا دیتا ہے، جب مولا کو بھول جاتے ہیں تو آنسو کہاں آتے ہیں، کہاں مولا کی یاد آتی ہے۔ لیکن جب ہم خیال لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، عاشقوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو اپنے نفس کی شکایت کرتے ہیں کہ دیکھو یہ نفس کتنا مضبوط ہوا ہے، اس کو کیسے توڑے۔ ساتھیوں سے مدد مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ او اے آنسو تو آؤ اے نارے عشق مجھ کو رونا ہے۔ نارے عشق، جو عشق کی آگ ہے اس کو بلانا پڑتا ہے، اس کو جلانا پڑتا ہے، جب عشق کی آگ جلتی ہے تبھی دل نرم ہوتا ہے، ورنہ یہ دل تو بہت سخت ہوا ہے، گناہوں کے زیر اثر، دنیا کی پریشانیوں کے زیر اثر، دنیا کی بہت ساری چیزیں جب دل پہ اثر کرتی ہیں، بہت زیادہ بزی ہو جاتے ہیں تب بھی، کیونکہ موقع نہیں ملتا مولا کو یاد کرنے کا، تو دل بہت بھاری ہو جاتا ہے۔ جب کوئی بھی بہانہ ملے جس سے احساس ہو کہ آج تو بہت دوری ہوئی مولا سے، جب ایسا احساس ہو تو پھر بیٹھ جانا چاہیے جیسے موقع ملے اور اس کو پکارنا چاہیے، خلوت میں یا محفل میں اس کو پکاریں، اس کو بلائیں، اس سے اپنے دل کے احوال بتائیں اور عشق کی آگ کو جلائیں، ایسی جلائیں کہ بس طوفان ہی تو آ جائے۔ جب بچہ ماں کے لیے روتا ہے، ماں تڑپ کے آتی ہے، اسی طرح سے ہمیں بھی ایسی ہمت، ایسی طاقت چاہیے کہ عشق کی آگ کو ایسے جلائیں کہ مولا کی قربت حاصل ہو۔ الحی 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 الحی
مشکل کشا مہربان مولا، تو ہمارے دلوں کے احوال کو جانتا ہے مولا۔ یہ ناچیز ایک نمائندہ بن کے، ایک ریپرزنٹیٹیو بن کے جو تمام ساتھی ہیں یہاں جمع ہوئے ہیں مولا، ان تمام ساتھیوں کی طرف سے یہ گزارش ہے مولا، یہ عرض بینتی ہے مولا کہ ہمیں گلہ ازاری کی دولت عنایت فرما مولا، ہمارے دلوں کو نرم کرنے کی ہمیں وہ ہمت دے، ہمارے دلوں کو صاف کرنے کی وہ طاقت دے مولا، جو تجھ سے ہی ملتی ہے، تیرے عشق سے ملتی ہے مولا۔ یا مولا تیرا عاشق بنانا مولا، تو ہمارے پاس آنا مولا، کیوں اتنی دوری ہے مولا، کیوں اتنی دوری ہے مولا؟ کیا ہی ہو اچھا مولا کہ دن رات تیرے دیدار کرے مولا۔ یا مولا، یا مولا، اب بس رحم کر دینا، آ جانا مولا، تو ہماری ماں ہے نا، تو آ جانا۔ کتنا تڑپائے گی ماں، کتنا تڑپائے گی، دیکھ تیرے بچے روتے ہیں، تجھے پکارتے ہیں، تیرے نام کو لیتے ہیں، تو ماں ہے تو آ جانا، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھنا۔ اے ماں، اے ماں، ہم جانتے ہیں کہ ہم فرمان بردار نہیں ہیں، ہم سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں، بہت گناہ ہوتے ہیں، پر تو ماں ہے نا، درگزر کرنا ماں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنی روحوں پہ بہت ظلم کرتے ہیں، دنیا کو بہت اہمیت دیتے ہیں، دین کو اہمیت کم دیتے ہیں مولا، دنیا کے سارے کام جلدی جلدی کرتے ہیں، دین کے کام کو پیچھے رکھتے ہیں مولا، دین کی تعلیم کو پیچھے رکھتے ہیں مولا، علم کو پیچھے رکھتے ہیں مولا، نہ سمجھی ہے نا مولا، نادان ہے نا۔ یا مولا، یا مولا، ہمارے دلوں کو بدل دے مولا، ہمارے دل کی کیفیت کو تو بدل دے مولا، ہمارے دل کے اندر جو دنیا کی محبت ہے اس کو نکال دے اور تیری محبت کو بٹھا دے مولا، ایسی محبت کے ایک لمحہ تجھ سے دوری نہ ہو مولا۔ فرق کو آزمائش نہیں مانگتے مولا، امتحان نہیں مانگ رہے تجھ سے مولا، تجھ سے تیری محبت مانگ رہے ہیں مولا، تیری عاشقی دے مولا، تیری محبت دے مولا۔ یا مولا، دن مہینے سال گزرتے چلے جا رہے ہیں مولا، گزرتے چلے جا رہے ہیں مولا، نہ جانے کب وہ وقت آئے کہ آنکھ بند ہو جائے مولا، بس مولا، یا مولا، رحم کی میٹھی نظر کر دینا مولا، ہم تمام کی باطنی آنکھیں کھول دینا ماں۔ یا مولا، ہمیں تو وہ حقیقتی سمجھ دے دینا ماں، تیرے بچے دیکھ تجھے پکارتے ہیں ماں، تو رحم کر دینا ماں، ہم پر رحم فرمانا ماں۔ کب تک مولا تو ہمارا امتحان لے گا مولا، ہم اتنے نادان ہیں مولا، ہم تو فیل ہوتے ہی چلے جائیں گے مولا۔ یا مولا، یا مولا، تو رحم فرما، تو مشکل کشا مدد فرما۔ یا علی المرتضی، فریاد رس، فریاد رس، آل پاک مصطفیٰ، فریاد رس، فریاد رس۔ یا علی المرتضی، فریاد رس، فریاد رس۔ شکر اللہ والحمد للہ، شکر اللہ والحمد للہ۔ یال مدد فرینڈز آن لائن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علی اللہ مدد فرما، واحد القہار، علی اللہ مدد فرما۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا
ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. شكرا لله والحمد لله شكرا لله والحمد لله. Alhamdulillah, we've been studying this Farman, Manjomri, December 30th, 1893, Farman number 20. And we had discussed till page 4, Mafi. We are beginning page 4. इसके बाद मौलाना सलवात पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. इसके बाद मौलाना हाजी इमाम ने फरमाया, आगा अली शाह दातार ने फरमाया था कि आधी रात को या अली की बंदगी करो, इसमें जो सवाब होगा वो तुम्हारा है और पाप यानी गुनाह हो वो हमारे ऊपर है. So Maula is giving us the dakhla of Aga Ali Shah, that Maula in that Jama used to say कि when you do bandagi at midnight, and during that time, whatever sins you do, if you were to sin at that time, meaning what? You fall asleep, you cannot concentrate, your thoughts are going around, wandering. Whatever happens, all the sins are upon Maula, but whatever we do good, sawab, benefits are ours. This is truly mercy of our mother, truly mercy of Maula. मौला इतने रहमान, इतने रहीम, ऐसी शफीक माँ दुनिया में किसके पास है? जिंदा मौजूद फरमान करे, हमें प्यार से समझाए, हमारा जैसा खुशकिस्मत कोई है ही नहीं. मौला मोहब्बत से समझाते हैं कि फिक्र नहीं करो, इबादत में बैठो, जो भी गुनाह हो वो हमारे हैं, इबादत में जो फायदा हो वो तुम्हारा है. So what are we learning from here? That we should wake up in bandagi. It does not matter if we are able to go to Jamaat Khana or not, because everybody has different kind of challenges. Life is very difficult nowadays. Working hours are very long. Some people have to drive a lot. There are so many challenges in people's life. Jamaat Khanas are too far. It does not matter. If we were to go to Jamaat Khana physically, we go for ourselves, not to show it to anybody. कि हम जमात खाने आए और कोई हमें देखे और कहे कितना अच्छा मोमिन है. That's not the reason that we go to Jamaat Khana. It is not that we look for the appreciation in people's eyes and that validation makes us happy that, oh, I did go to Jamaat Khana, I feel happy. No, that's wrong, very wrong. We only go to Jamaat Khana for ourselves and our for Imam. It is not to meet with anybody in that sense, that because this and this person saw me, I went to Jamaat Khana, I feel happy, I am Bhagat, I am Momin. That is pretension, that is guna. So when we go to Jamaat Khana, we go with clean heart, not to show it to anybody. It doesn't matter who sees, who doesn't see. It doesn't matter. Even we have to protect ourselves from people's eyes who appreciate us, because that appreciation can go to our head. And that is a guna again. So we have to be very careful, very careful. And if we are not able to go to Jamaat Khana, there is no one here anywhere who can judge us. It is all Imam's judgment. Maula knows what situation one is. It is up to Maula. So do not be ever worried about people's judgment. It is not about anybody else but you and your Imam. So wherever you are, whenever you can do, sit in bandagi. Some people wake up 3 o'clock. Wonderful. नवाफिल की इबादत है, नवाफिल का जागना है, क्योंकि इमाम ने फरमाया कि जो फर्ज है उससे खुदा नहीं करीब होता है.
जो नवाफिल यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ज्यादा जो फर्ज है उससे ज्यादा करते हैं, उससे इमाम की कुर्बत मिलती है, उससे इमाम करीब आता है। तो जिनके पास हिम्मत है, ताकत है, मुमकिन है उनके लिए शायद वो 3 बजे भी उठे इबादत करें, 2 बजे भी उठे, 12 बजे भी उठे। वी डोंट नो व्हाट पीपल डू, वी डोंट नो। The question is what I can do, what is possible for me. It is for each individual to find out for themselves. If you are able to wake up 4 o'clock, wonderful. If you are able to wake up 4:30, alhamdulillah. Whatever you can do, please do. Importance is please do. This is a commitment बैतुल ख्याल का जो हमने अपने इमाम को मोहब्बत से दिया है। उसने जबरदस्ती नहीं की थी हमसे, हम खुद गए थे कि नहीं मौला वी विल डू बंदगी, वॉलंटरीली हमने कमिटमेंट दिया, फिर सुस्ती नहीं करनी है। जैसी भी ताकत, जैसी भी हिम्मत, इबादत में उठना है, बैठना है। जमात खाने जा सकते हैं, वेरी गुड, नहीं जा सकते हैं, डोंट फील बैड, ट्राई योर बेस्ट, सिंसेरिटी जरूरी है। नहीं जा सकते हैं, जहाँ है इबादत करें, इबादत के वक्त को संभालें, उस वक्त को ना खोएं। गिल्ट में रह के, ध्यान गिल्ट में है और इबादत नहीं हुई, क्या फायदा। अपने आप को गिल्ट से बचाना है, जजमेंट से बचाना है। जज जो है हमारा मौला है, कोई भी नहीं है। और फिर हम इबादत में बैठे, उस इबादत में बैठने के बाद अगर नींद आ गई या दुनिया के ख्यालात आए, नियत क्या थी, बैठना है, इमाम को याद करना है, और फिर गुनाह हुए, कोई बात नहीं। इमाम says there is no failure. हाजिर इमाम के जो वर्ड्स हैं, मौला says there is no failure. आगा अली शाह ने फरमाया कि गुनाह हमारे, सवाब तुम्हारा, एक ही बात है, बात फर्क नहीं है। क्या है पीछे? माँ की मोहब्बत, माँ की इनकरेजमेंट, wake up and sit in ibadat. Then मौला says here, मौला मुर्तजा अली तुम्हारा ईमान सलामत रखे। अगेन माँ की दुआ, मौला मुर्तजा अली तुम्हारा ईमान सलामत रखे। जिस तरह गिनान में कहा गया है उसके मुताबिक चलो। मौला मुर्तजा अली तुम्हारा ईमान सलामत रखे। Why मौला मुर्तजा अली? Why मौला didn't say कि भाई मैं दुआ करता हूं कि तुम्हारा ईमान सलामत रहे। इमाम भी तो मौला अली है हमारे लिए, तो why taking the name of मौला अली as if मौला अली is separate from him? ऐसा तो नहीं है। तो why would मौला say it like that? मौला हमारा ध्यान दिला रहे हैं किस पे, कि मौला मुर्तजा अली का जो दर्जा था वो अस्सास इमाम का था। हमेशा जब साइकिल की शुरुआत होती है तो साइकिल के जो पहले इमाम होते हैं, जो अस्सास इमाम होते हैं, उसके ऊपर पूरा साइकिल होता है। ये जिस टाइम, जिस दौर में है, मौला अली अस्सास इमाम है और हमारे आखिरी पैगंबर प्रॉफेट मोहम्मद, इसीलिए हम या अली या मोहम्मद की तस्बीह निकालते हैं, क्योंकि इन दो हस्तियों ने, पाक हस्तियों ने इस साइकिल की शुरुआत की थी। They were the ones who began this cycle. That is why we are reminded of their name. मौला मुर्तजा अली तुम्हारा ईमान सलामत रखे। In other words, Imam is saying, I am praying for you, तुम्हारा ईमान सलामत रहे। But Imam is drawing our attention towards मौला अली. And then मौला says, जिस तरह गिनान में कहा गया है उसके मुताबिक चलो। अब यहाँ पे रुक के हमें सोचना होगा, if someone says नहीं हम गिनान को फॉलो करते हैं क्योंकि इमाम ने फरमाया है, लेकिन फरमान भी तो है, हम फरमान भी पढ़ते हैं, तो मेरी गुजारिश होगी कि फरमान को ध्यान से पढ़ें, गिनान को ध्यान से पढ़ें। दोनों में ही कुरान को भी पढ़ने की बात की गई है। जब हम इस तरह से एक्सक्यूज निकालते हैं तो इसका मतलब ये होता है दैट वी आर स्टडीइंग फरमान्स, बिलीविंग फरमान्स, फॉलोइंग फरमान्स विद कन्वीनियंस। चाहे आप गिनान उठा लें, चाहे फरमान उठा लें, आपको कुरान की भी तालीम मिलेगी। लेकिन चूंकि हम कंफर्टेबल हैं गिनान के साथ, फरमान के साथ, क्योंकि लैंग्वेज मैटर करती है, राइट? लैंग्वेज इज आर्ट्स, उर्दू, गुजराती, इंग्लिश, वी आर स्टिल एबल टू डील विद इट। अरबी आती है तो जान जाती है,
इमाम हमें इमाम he knows, right? So what Mawla says, तुम्हें अरबी नहीं आती तो क्या हुआ, जिसे अरबी आती है क्या वो बहिश्त में जाएगा, और जिसे नहीं आती क्या वो जहन्नम में जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं। लिटरली आई फील इमाम ने उसी वक्त किसी की सोच पढ़ी कि ठीक है, गिनान पढ़ना है, फरमान पढ़ना है, काफी, कुरान तो नहीं पढ़ना है ना। इमीडिएटली इमाम ने फरमाया कि अगर अरबी नहीं आती है तो डोंट वरी अबाउट इट, इट इज नॉट अबाउट द लैंग्वेज। जब भी हम बात करते हैं कि हमें कुरान की तालीम लेनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि अरबी जबान सीखो। या अरबी किसको आती है? नाचिस को भी नहीं आती है, अरबी थोड़ी आती है। बात जो हो रही थी वो अरबी की नहीं है, तावील की है, मग्स की है, एसेंस की है। जब कुरान पढ़ने की बात आती है तो कुरान की अरबिक से ताल्लुक नहीं है। इस बात का जो हम बात करते हैं उसका लैंग्वेज से ताल्लुक नहीं है। उसके अंदर जो खजाना छुपा है, जो तावील छुपी है, उसकी बात हो रही है। लेकिन जरूरी है कि कुरान उठाएं ताकि हम ट्रांसलिटरेशन को पढ़ें। ट्रांसलिटरेशन क्या है? रोमन इंग्लिश में लिखा हुआ अरबिक। जिस तरह से आज हम गुजराती फरमान पढ़ते हैं, रोमन गुजराती में पढ़ते हैं। Because my Gujarati has become weak, I cannot read anymore Gujarati because I left that language. Reading practice खत्म हो गई है. So I feel comfortable now reading Roman Gujarati than Gujarati. And it is okay if we understand it. Similarly, जब हम अरबिक उठाते हैं और अरबिक का ट्रांसलिटरेशन पढ़ते हैं, we do know Arabic, believe it or not, words of Arabic, because हमारा पूरा दीन जो है, हमारी पूरी क्रियाएं जो हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, उसमें अरबी लैंग्वेज छाई हुई है। But because we are so intimidated by the language Arabic that we are not willing to even know कि हमको कितना आता है। तो मौला फरमाते हैं कि इट्स नॉट अबाउट द लैंग्वेज। ऐसा नहीं कि जिसको लैंग्वेज आती है वो बहिश्त में जाएंगे, नॉट एट ऑल। सारे जो अरब में लोग हैं, जहाँ जहाँ जो लोग अरबी जानते हैं, तो क्या वो मौला से करीब है क्योंकि उनको अरबी आती है, वो कुरान पढ़ सकते हैं? हमको अरबी नहीं आती है, कुरान नहीं आता तो हम इमाम से दूर हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर हमने इमाम के फरमान के मुताबिक कुरान के अंदर जो राज है, जो मग्ज है, जो तावील है, वो सीख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, हम इमाम के साथ हैं, इमाम हमारे साथ है। तो ये एक नादानी की और खामखा बिला वजह डरने की बात है कि हाउ कैन वी स्टडी कुरान? नो नो नो, कुरान इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स इन अरबिक। हु नोज अरबिक भाई? नोबडी नोज अरबिक हियर, एटलीस्ट आई डोंट। I don't know if you, one of you know Arabic. Alhamdulillah, I don't. तो इमाम क्या फरमाते हैं? जिस जबान में खुदा की बंदगी करो वो जबान, तमाम की जबान खुदा जानता है। इट डज नॉट मैटर कि क्या लैंग्वेज में हम बंदगी कर रहे हैं, मीनिंग हम किस लैंग्वेज में उसको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम इंग्लिश पढ़ के उसकी तालीमात को लेके उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम उर्दू पढ़ के या अरबी पढ़ के या पर्शियन पढ़ के? इट डज नॉट मैटर, जो भी हमारी लैंग्वेज है, मौला हर जबान को जानता है। अगर खुदा अरबी जानता हो और दूसरी तमाम जबानें ना जानता हो तो वो खुदा में कबूल नहीं है। इमाम इज सो मर्सीफुल कि हमारे फियर को देख के, बिकॉज वी फियर अरबिक, राइट? इमाम इज सेइंग कि अगर खुदा ऐसा है जो सिर्फ अरबी जानता है, हमको ऐसा खुदा ही नहीं चाहिए भाई, हमको ऐसा खुदा ही नहीं चाहिए। कैन यू इमेजिन दैट? इमाम कितना रीअश्योर करते हैं हमें, कितना इनकरेज करते हैं। It's not about the Arabic language. It's about the तावीर, it's about the मगज, जिससे हमें समझ मिलेगी कि कैसे अपने तरीके को पहचानना और समझना है। बाद मौलाना हाजिर इमाम ने फरमाया, हाजिर जौमे को पहचानो, हाजिर जौमे को पहचानो। तो यहाँ पे कोई सवाल करेगा, do we not know Imam? We have been listening to recognition of Imam, recognition of Imam. And Alhamdulillah, we just celebrated Laylatul Qadr. We just celebrated Eid ul-Fitr. And if you are listening carefully, Chandrat ke lectures and Eid ul-Fitr ki तावील, we would know Imam Aka Sultan Muhammad Shah कौन थे दर हकीकत में। उस जौमे को पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इमाम is clearly telling us, हाजिर जौमे को पहचानो। तो क्या मौला मुर्तजा अली को नहीं पहचानना है? क्या आका अली शाह को नहीं पहचानना है?
سب کی ریکگنیشن چاہیے, سب کو ہمیں پہچاننا ہے. کس طرح سے؟ پہلے علم سے. علم سے ہمیں عقل آئے گی, علم سے ہمیں سمجھ آئے گی, اینڈ دین باطن کی آنکھیں کھلے گی. لیکن جس کے پاس علم نہیں ہے اس کی حالت, اس کی مثال اندھے کی ہے. اندھے کو تو نظر نہیں آئے گا, تو باطن کی آنکھیں تو کھل ہی نہیں سکتی ہیں. So it is so important for us to have true knowledge that will lead us to build our batni aankhein. Without knowledge, it is impossible to elevate in spirituality. اور اگر کوئی spirituality میں آگے بھی بڑھ جاتا ہے اس کا نقصان ہو سکتا ہے. And I'll tell you with the reference, we were studying امام سلطان محمد شاہ کے ہی فرمان ٹیوزڈے ایوننگ کو گجراتی میں بیت الخلا کے فرمان. And Imam is referring to Juma Bhagat. And Juma Bhagat, who was very ibadati, he was Bhagat. But a time came in when Maula said that no more bandagi. Why? Have you ever heard of this situation कि Imam कहे कि बंदगी नहीं करो? Because he had no knowledge. Without knowledge जब इबादत की जाती है तो होता क्या है کہ اس میں بہت بڑی شیطان کی بازی آتی ہے, بہت بڑی شیطان کی بازی آتی ہے. اس سے سب کو ڈرنا چاہیے, کیونکہ اگر ہم علم حاصل کر کے سمجھ کے امام کی شناخت کو جب نہیں پہنچتے ہیں تو گرنے کے بہت خطرے ہوتے ہیں, شیطان کے چنگل میں پھنسنے کے بہت چانسز ہوتے ہیں. علم سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے. مثال دیتے ہیں, ایک مثال تاکہ ہم سیکھیں. فار ایگزامپل, اگر ہماری کوئی تعریف کرتا ہے اور اگر ہم اس تعریف کو سنتے رہتے ہیں تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ a time can come کہ وہ تعریف جو ہے نا وہ ہمارے دماغ میں چلی جائے گی, ہم اپنے آپ کو سمجھنے لگیں گے. اینڈ ہیئر ہماری ہیوملٹی گئی, اپنے آپ کو کچھ سمجھا, غرور آ گیا. تو پکڑ کے رکھنا پڑتا ہے اپنے آپ کو کہ غرور نہ آئے, عاجزی میں رہیں ہم. تو بچنا پڑتا ہے اپنی تعریف سے کہ تعریف نہیں چاہیے. تعریف تو اس خدا کی جس نے ہمیں بنایا, الحمدللہ, سبحان اللہ, اس کی تعریف ہے. ہماری غریبوں کی کیا تعریف ہونی چاہیے؟ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. جو علم ہے, جو ہم سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, سب مولا کی دین ہے. تو تعریف اس کی کرے جس کا حقیقت میں یہ مال ہے, ہمارا تھوڑی ہے. اس طرح سے جب تک ہم علم سے اپنے آپ کو نہیں سمجھیں گے, نہیں سدھاریں گے, تب تک یہ چاہنا کہ باطن میں ہماری ترقی, باطن میں ہم آگے بڑھیں, مشکل ہوگا. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ حقیقی علم کو حاصل کرنا. تو یہاں دوبارہ فرمان پہ آتے ہیں. امام فرماتے ہیں حاضر جومے کو پہچانو, حاضر جومے کو پہچانو, بندگی عبادت کرو, دین پر چلو, دین کا راستہ ہم سے پوچھو, اور دین کے حق راستے پر چلو. Recognition of Imam. We've been hearing this everywhere, in every lecture. جہاں بھی جائیں حقیقی علم کی کلاسز میں, you will hear کہ recognition of Imam is must. شروعات کہاں سے ہے؟ علم سے. علم لینا پڑے گا سیریسنس کے ساتھ, سنجیدگی کے ساتھ. آگے سے آگے ایڈوانس لیول پہ جاتے جاتے جا کے سمجھ آئے گا کہ کس طرح سے امام کی شناخت, امام کی ریکگنیشن علم میں کیسے ہے. اس کے بعد جب عبادت بندگی ہوگی, دین کے راستے پہ چلیں گے, امام کے فرامین کو سمجھ کے چلیں گے, ڈیفینیٹلی حق راستے کا, سچے راستے کا پتہ چل جائے گا, اور ہم امام کی شناخت کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکیں گے. تو امام سے کہ ہم سے پوچھو تو تمہیں راستہ بتائیں, ہم سے پوچھو. Now if someone says, Mola Papa, you are so far away, how do I ask you? Mola, you are not there. Remember, مولا کی جو مثال ہے وہ بادشاہ کی مثال ہے. بادشاہ does not have to work. بادشاہ has his servants, his غلامان who will serve, who will follow his orders. So always remember that اگر کوئی امام سے سوال کرتا ہے, امام بادشاہوں کا بادشاہ ہے, وہ کسی بھی طرح سے ہم تک اس جواب کو, اس علم کو پہنچائے گا. ایک قصہ یاد آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے دیدار کی,
ख्वाहिश की اور کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو کھانا کھلاؤں. پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے جب خدا راضی ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں ملنے آؤں گا، تم اس دن اس وقت لنچ پہ جو ہے میں آؤں گا. اب موسیٰ علیہ السلام بہت ساری دیگیں پکا رہے ہیں، یہ بھی کھانا وہ بھی کھانا، تمام لوازمات تمام کھانوں کے ساتھ کہ میرا مولا میرا خدا آنے والا. اور ٹھیک جب لنچ کا ٹائم ہے، خدا کے آنے کا ٹائم ہے، اور بھکاری آتا ہے، فقیر آتا ہے، لکڑی لیے لنگڑاتے لنگڑاتے موسیٰ کے دروازے پہ. موسیٰ کہتا ہے جاؤ جاؤ، خدا آنے والا ہے، مجھے اس کا انتظار ہے، تم کیوں مجھے تنگ کرنے آ گئے، جاؤ یہاں سے. اور دروازہ بند کر دیتے ہیں کہ بھئی صاف رستہ صاف رہے، خدا کے آنے کا وقت ہے، تم جاؤ یہاں سے. دوسری دفعہ تھوڑی دیر میں دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، پھر وہی فقیر. موسیٰ کہتے ہیں کہ بھائی تیرا سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ ہمیشہ کھانا ملے گا لیکن آج نہیں، آج تم جاؤ، آج میں نے خدا کو انوائٹ کیا ہے، آج اس کی رات تک رہا ہوں، تم چلے جاؤ، راستہ صاف رکھو. پھر دروازہ بند. تیسری دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے. موسیٰ کہتے ہیں تم کس قسم کے آدمی ہو، چلے جاؤ یہاں سے. بھائی تم سے کہا کہ بھائی خدا کو آج انوائٹ کیا ہے، اتنا کھانا پکایا ہے، تم بعد میں آنا، ایسا کرو تم بعد میں آنا. موسیٰ انتظار کرتے رہتے ہیں، خدا تو نہیں آتا ہے. اور پھر دوسرے دن جب وہ کوہ طور پہ جاتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ خدایا تو نے مجھے وعدہ کیا، میں نے تیرے لیے کھانا پکایا، سب تیاری کی، تو آیا نہیں میرے پاس. تو خدا کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نہیں، میں تو 3 دفعہ آیا، تو نے 3 دفعہ مجھے دھتکار دیا. موسیٰ کہتے ہیں میری مجال، میں ایسا کروں خدایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ آئے. تو نے وہ فقیر کو نہیں دیکھا تھا. تو یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کس بھیس میں آتا ہے، وی ڈونٹ نو. وہ کس طرح سے ہمارے لیے جواب لاتا ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن وہ آتا ضرور ہے. وہ ہر کے دل کی فریاد کو سنتا ہے، جو سچے دل سے اسے مانگتا ہے وہ اس کو سنتا ہے اور اس کو گائیڈ کرتا ہے. لیکن ہمارے پاس علم سے وہ آنکھیں ہونی چاہیے کہ ہم پہچان سکیں. جب تک علم نہیں ہے we have no recognition. تو باطن میں تو پہچانا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پہ جب امام فرماتے ہیں حاضر جومے کو پہچانو، بندگی عبادت کرو، دین پر چلو، دین کا راستہ ہم سے پوچھو. میننگ واٹ؟ مغز کو پہچانو، تعویل کو لو، ایسنس کو سمجھو، اور دین کے حق راستے پر چلو، سچے راستے پہ. ہم سے پوچھو تو تمہیں راستہ بتائیں. اگر ہمارے پاس نہیں آؤ گے اور ہم سے نہیں پوچھو گے تو اس کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے. امام از ویری کلیئر. امام نے جب ایک ماں بچے کو پیدا کرتی ہے، ماں کی جان جاتی ہے اگر بچہ بھوکا ہو، ماں فوراً سے بچے کی بھوک کو پورا کرتی ہے. کہیں بھی کتنا بھی بزی ہو، بچے کے لیے بچے کے کھانے کا وقت ماں دوڑ کے آتی ہے. کتنی جاب بھی کر رہی ہے سب چیزیں، لیکن the way mom would work for child's needs, we all know that. We are parents here. We have seen parents. Imam is our mother. Can she leave us like that in misery, in takleef? Can Ma do that? If we are physical parents اور ہم اپنے بچوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، ہماری جان جاتی ہے، دعائیں نکلتی ہم سے کہ ہمارے بچوں کو مولا تو تکلیف نہیں رہا، تو وہ ہماری ماں ہے، ہم کو سمجھ نہیں آتی یہ بات. ہم پہ ذرا سا امتحان آتا ہے تو ہم روتے ہیں کہ مولا تو مشکل آسان کر. کیا اس کو نہیں معلوم ہے کہ ہم پہ مشکل ہے؟ کیا اس کو نہیں معلوم ہے؟ وہ سب جانتا ہے. کوئی وجہ ہے کہ ہم پہ یہ مشکل آئی ہے، کوئی ریزن ہے، کچھ سکھانا چاہ رہا ہے، کچھ سمجھانا چاہ رہا ہے. تو ہم کب سیکھیں گے، کب سمجھیں گے؟ ہم مولا سے ایسے بات کرتے ہیں کہ مولا تو دیکھتا ہی نہیں ہے ہمیں، جبکہ وہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ. جہاں تم ہو میں وہاں ہوں. جب مولا ہمارے ساتھ ہے اور مولا کہتا ہے کہ تمہارے ماں باپ سے 1000 گنا زیادہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں، 1000 گنا. ہاں ٹیل می کہ ہم کو کوئی بھی تکلیف اس کو بتانے کی ضرورت پڑنی چاہیے، وہ جانتا ہے سب کچھ. کیا ماں کیا دیکھنا چاہتی ہے اپنے اڈلٹ بچے کو دیکھ کے کہ کریج کے ساتھ، ہمت کے ساتھ کیا کہے، شکر للہ والحمدللہ. تکلیف ہو تو کیا کرے، تسبیح نکالے، گریہ زاری کرے، ہمت مانگے مولا سے، کمپلین نہیں کرے.
इम्तिहान किस पे नहीं आते हैं? अगर हम किसी भी पैगंबर की मिसाल को लें, किस पैगंबर पे तकलीफ नहीं आई? एक पैगंबर आप मुझे ला के दे दें। जब वो चोजन थे, खुदा के चहीते, खुदा के पसंदीदा लोग थे, अगर उन पे खुदा ने इतने इम्तिहान डाले, हम किस खेत की मूली हैं? जब इमाम फरमाते हैं हमसे पूछो तो तुम्हें रास्ता बताए, अगर हमारे पास नहीं आओगे, इशू जो है वो ये है, हम मौला के पास नहीं जाते हैं, हम अपनी अक्ल चलाते हैं, हम अपने सोल्यूशंस को ढूंढते हैं ना। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करें, प्रॉब्लम्स को टैकल करना है, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट्स है वो इमाम पे छोड़ना है। स्ट्रगल इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, डिफीट और विक्ट्री इज इन द हैंड ऑफ गॉड, वी डू आवर बेस्ट, दैट्स इट। जो मौला की मर्जी होगी, जो हमारे हक में बेहतर है, क्योंकि माँ जो जानती है हम नहीं जान सकते, माँ जो हमारे लिए करती है वो बेहतरीन करती है, माँ जो हमारे लिए करती है वो बेहतरीन करती है। अगर हमें ये यकीन है, खुद अगर हम माँ हैं, अपने बच्चों को कभी तकलीफ नहीं देना चाहते, तो वो माँ कैसे तकलीफ देगी? और अगर इसके बाद हम तकलीफ में हैं, इसकी कोई वजह है, कोई वजह है। तो इमाम कहते हैं अगर हमारे पास नहीं आओगे और हमसे नहीं पूछोगे तो इसकी जिम्मेदारी हम पर नहीं है। तकलीफ आई, इमाम की माँ के पास जाना है कि माँ तकलीफ आई, कैन यू हेल्प मी? माँ से पुकारना है, माँ से हिम्मत मांगनी है, माँ से मदद मांगनी है, वो मदद करेगा, उसका तो काम ही मदद करना। लेकिन अगर हम कहेंगे नहीं, हम मदद नहीं मांगेंगे, हमसे जिक्र नहीं होता है, तकलीफ है तो बस हम परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, अब हमसे नहीं होता है, तो इसमें किसकी नादानी है? ओनरशिप चाहिए ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, अडल्ट बच्चे हैं, राइट? चिल्ड्रन नहीं है, हम अडल्ट हैं। तो इमाम फरमाते हैं खुला खुला, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। Imam is treating us like adults. We need to behave like an adult. फिर मौला फरमाते हैं इसकी मिसाल ऐसी है कि कोई फकीर हो और मांगने के लिए जाए तो उससे मिले। फकीर हो और मांगने के लिए जाए, हम तो बहुत बड़े लोग हैं, हम तो मांगते हैं, हमको शर्म आती है, मौला को खुद दे देना चाहिए, या हम अपने प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व कर लेंगे। रिमेंबर, यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि डॉक्टर के पास नहीं जाना है, थेरेपिस्ट के पास नहीं जाना है, इंस्टीट्यूशंस के पास नहीं जाना है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सीख करना है, बट जो रिजल्ट है वो इमाम की मर्जी पर है। इमाम जो दे उसको विदाउट एनी कंप्लेन एक्सेप्ट करना है। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात सिखाई जा रही है वो ह्यूमिलिटी है। थिंक ऑफ योर सेल्फ एज अ बैगर। एक बैगर की हैसियत, पता है बैगर की क्या हालत होगी? कोई नहीं दे रहा है, होपलेस है, बिल्कुल हालत बुरी है। ऐसी हालत से जब इमाम के पास मांगने जाए कि मौला तेरे सिवा मेरे पास है ही नहीं, कोई है ही नहीं, तू ही देने वाला है, तुझसे ही मांगेंगे, तेरी ही इबादत करेंगे, तू ही मददगार है, ऐसा एटीट्यूड हमारा हो तो वो डेफिनेटली हमको देगा। क्योंकि वो कहता है क्राइटेरिया क्या है, कोई फकीर हो और मांगने के लिए जाए तो उससे मिले। क्वेश्चन ये है कि हम में से कितने लोग हैं जो तकलीफ में है, मुश्किलात में है, इमाम से ज़ारो कतार मांगा है और मांग की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी है, मांगना है विदाउट एक्सपेक्टेशंस। अगर हमने दो चार आंसू बहा लिए, दो चार तस्बीह निकाली, अभी एक्सपेक्टेशंस बिल्ट हो गई, यू नो मौला आई वेंट टू जमात खाना, यू नो मौला आई डिड दिस एंड आई डिड दैट, अभी बदला चाहिए मुझे। तो ये अभी कोई सौदेबाजी हो रही है इमाम से। कोई माँ के लिए जब करता है तो वो सौदेबाजी करता है, नहीं, नहीं हो सकता ना, ये बातें गलत है। ये दुनिया की लेन देन का सौदा नहीं है, ये तो मजहब की बात है, ये तो रूहानियत की बात है। तो क्या करेंगे हम जब मौला से बैगर की तरह मांगेंगे और रिजल्ट्स मौला जो दे उसको एक्सेप्ट करेंगे, शुक्रिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नो कंप्लेंट्स मौला, बट यू नो व्हाट मौला, इट इज डिफिकल्ट फॉर मी, गिव मी हिम्मत टू नो, एंड देन सी हिज मिरेकल। अगर घर पर बैठा रहे तो भूखा मर जाए। अगर कोई फकीर है जो भूख लगी है उसको, अगर वो मांगने नहीं जाए तो घर पे बैठा रहेगा तो खुदा घर पे आके तो खाना नहीं देगा, राइट? खुदा घर पे आके तो खाना नहीं देगा। फकीर को भी घर से बाहर जाना है, भीख मांगनी है, तब जाके खाना मिलेगा।
So who are we? We all are beggars in front of Imam, in Maula's court. We all are beggars. And we need to seek, we need to ask. तो क्या मांग रहे हैं आज हम? इमाम से हम इल्म मांग रहे हैं, हकीकी इल्म, इमाम की शनाख्त, ये मांग रहे हैं. क्योंकि विदाउट हकीकी इल्म हमारे पास अगर इमाम की शनाख्त नहीं है तो आगे का रास्ता नहीं मिलेगा हमें. तो इमाम से क्या मांग रहे हैं? इल्म मांग रहे हैं. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? घर से बाहर निकलना पड़ेगा. अब घर से बाहर निकलने का क्या मतलब है? हम वर्चुअली क्लासेस अटेंड नहीं करें, कहीं फिजिकली करें, नहीं, ये बात नहीं हो रही है. घर मतलब है कंफर्ट जोन. आई एम वेरी कंफर्टेबल स्टडिंग फरमान, गिनान, कुरान नहीं पढ़ना है. आई एम वेरी कंफर्टेबल इन माय गुजराती लैंग्वेज, इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है. नहीं, इमाम इज सेइंग कि अगर चाहिए तुमको, घर में बैठे रहोगे तो नहीं मिलेगा, भूखे मरेंगे. We all need to come out of our comfort zone, push ourselves, show Imam that yes, Maula Papa, we are willing to sacrifice. Without कुर्बानी कहाँ से आगे बढ़ेंगे? Without मेहनत कैसे आगे बढ़ेंगे? घर से बाहर निकलेंगे तो ही खाना मिलेगा ना. फिर मौला फरमाते हैं, इसमें गांव के दूसरे लोगों का क्या कसूर? गांव, ठीक है, एक टाउन की एग्जांपल लेते हैं कि इस टाउन में बहुत सारे जमाती मेंबर्स हैं, इल्म गिनान भी है, हमारे पास इल्म नहीं है और हम घर में बैठे रहें और बाहर जाके इल्म लेने के लिए मेहनत नहीं करें, तो जो लोगों के पास इल्म है, जो टाउन में अच्छे लोग हैं, वो हमारी मदद कैसे करेंगे? अब इसको एक और लेवल पे ताबीर समझते हैं कि अगर हम कहते हैं कि हमारा पर्सनल वर्ल्ड है, हमारा आलम शख्सी है, और आलम शख्सी के अंदर बहुत सारी सोल्स हैं, रोमे रोमे मारो शाह से, लेकिन आई जो अना है, जो जिसमें मैं हूं, ठीक है ना, आई एम नियामत. ओके, अगर नियामत ही उठ के मेहनत ना करे तो वो जो पूरी कायनात उसके अंदर है, वो बेचारी, उसका तो कोई कसूर ही नहीं है, कोई कसूर ही नहीं है. जिसकी जो आई है, जिसकी जो अना है, हर एक रिस्पॉन्सिबल है अपने खुद के पर्सनल वर्ल्ड के लिए. अपने अंदर पूरा यूनिवर्स लेकर घूम रहे हैं, उस यूनिवर्स को संभालना तो है ना, उस यूनिवर्स के अंदर जो रूह है उनको जगाना है, उनको खिलाना तो है. लेकिन अगर हम ही मेहनत ना करें तो उनको कैसे हेल्प करेंगे? पीर ने बहुत मेहनत की थी, तो पीर ने क्या कहा? रोमे रोमे मारो शाह से. उसके रोम रोम में जान थी, रोम रोम में रूह सुजाग थी. तो इमाम फरमाते हैं, इसकी मिसाल ऐसी है कि कोई फकीर हो और मांगने के लिए जाए तो उसे मिले, अगर घर पर बैठा रहे तो भूखा मर जाए. इसमें गांव के दूसरे लोगों का क्या कसूर? मांगे नहीं तो कोई दे भी नहीं, इसमें दूसरों का क्या कसूर? मांगने के लिए जाए ही नहीं तो उसे मिले भी नहीं, सीधी सीधी बात है. अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, मेहनत नहीं करेंगे, सैक्रिफाइसेस नहीं करेंगे तो मिलेगा भी नहीं, सीधी सीधी बात है. दीन के रास्ते के मुतालिक तुम हमसे नहीं पूछोगे तो रास्ता भूल जाओगे. तो चलो, इल्म हासिल किया, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, एक मकाम तक पहुंचे. इसके बाद अभी काफी इल्म है मेरे पास, मुझे समझ आ गई, अच्छी आगे के दर्जात की समझ आ गई, और फिर हमारे अंदर एक कंफर्ट जोन आ गया कि आई एम ओके, आई हैव लर्न दिस मच, शुक्र मौला. क्या होगा? भूल जाएंगे. इल्म से दूरी करेंगे, भूल जाएंगे. उस इमाम इज सेइंग दैट दीन के रास्ते के मुतालिक तुम हमसे नहीं पूछोगे तो रास्ता भूल जाओगे. भूल जाएंगे कैसे मौला? हम सिरातुल मुस्तकीम पे है मौला, हम तेरे बंदे हैं, कैसे रास्ता भूल जाएंगे? But Imam is saying that if you will not ask me, if you will not stay in constant touch through learning and growing, we will forget. Do we not see that physically happening in our physical lives? When we do not practice something, we just talked about language, right? I stopped reading Gujarati, I forgot. Now it takes me much longer time to be able to read Gujarati because I didn't practice. So जब हम
इल्म गिनान को एक हद तक हासिल कर लेंगे और फिर कहेंगे कि नहीं, आई नो दिस मच, आई नो मोर देन दिस पीपल, अपने आप को कंपैरिजन में डाल के खुश कर लिया, एंड देन आई एम इनफ, फिर क्या हुआ, भूल जाएंगे। इल्म से दूरी जो है, इमाम से मांगने से दूरी जो है, हमें इमाम से दूर कर देगी। फिजिकली शायद जमात खाने जाए, इबादत में भी बैठे, लेकिन जो अंदर जो कनेक्शन बना था, जो ग्रोथ हुई थी, वो स्लोली स्लोली भूलते जाएंगे, डिस्कनेक्शन होता जाएगा। We got to stay in connection all the time. And then मौला इस स्ट्रिक्ट फरमान मौला का, मौला फरमाते हैं दीन के रास्ते के मुतालिक तुम हमसे नहीं पूछोगे तो रास्ता भूल जाओगे और जहन्नम में जाओगे। Now we all know what is Jahannam. Being ignorant is like a one is in Jahannam. क्योंकि क्या फरमाया गया है कि जो लोग इग्नोरेंट है, दे आर इन द फायर ऑफ हेल। जिनको इमाम की शनाख्त नहीं है, उनकी मिसाल कैसे दी पैगंबर ने कि वो जैसे दोज़ख की आग में है। जो लोग इग्नोरेंट जाहिलत की मौत मर जाते हैं, वो दोज़ख की आग में है। और इमाम यही फरमा रहे हैं कि तुम अगर नहीं पूछोगे तो रास्ता भूल जाओगे और जहन्नम में जाओगे। इसका बोझ हमारे सर पर नहीं। Imam is saying, I'm not responsible for that because you did not take effort. I guided you, but you did not follow the guidance. तुम घर पर बैठे रहोगे और हमसे नहीं पूछोगे तो हम पर कुछ नहीं। Literally Imam is saying कि तुम घर पे बैठे हो, तुम नहीं पूछोगे, कंफर्ट जोन के बाहर नहीं आओगे, मेहनत नहीं करोगे, कुर्बानी नहीं करोगे, मौला इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। अरे मौला, तू ही हमारा सब कुछ है, तू अगर हमारे लिए नहीं करेगा तो हम कहाँ जाएंगे, हमारा क्या होगा माँ? माँ ने समझ भी तो दी ना। माँ ने कहा अब तुम बड़े हो गए हो, अडल्ट हो गए हो, अपनी जिम्मेदारी पहचानो। खुदा ने कुरान में क्या फरमाया? हेल्प मी सो आई कैन हेल्प यू। दैट हेल्प मी इज यू गो अहेड एंड लर्न एंड ग्रो सो आई कैन गिव यू अबंडेंटली। इसके बाद मौलाना हाजी इमाम ने फरमाया, नबी साहब दुनिया से रहलत करते वक्त वसीयत की थी कि मैं दुनिया में दो चीजें छोड़े जाता हूं, जिसमें एक किताब और दूसरी मेरी आग। We all know about this hadith Saklan. Imam is referring to hadith Saklan. बाद मौलाना हाजिर इमाम ने इसके मुतालिक फरमाया, वो किताब लेकर मुर्तजा अली मस्जिद में गए और तमाम लोगों से फरमाया कि ये किताब मुझे रसूलुल्लाह ने दी है, नेज तुम्हारे पास ले आने के लिए वसीयत की थी, लिहाजा तुम ले लो। तब तमाम लोगों ने कहा कि हमारे पास हजरत उस्मान की किताब है, वो काफी है, आपकी किताब की हमें जरूरत नहीं है। इमाम को नहीं पहचानते थे तो क्या कहा इमाम से? आपकी किताब की जरूरत नहीं है। तब मुर्तजा अली ने फरमाया कि उस किताब की तुम्हें रत्ती बराबर भी खबर ता क़यामत तक नहीं पड़ेगी। ये कहकर किताब अपने घर वापस ले गए। वो किताब 10 पारे हैं, उनके बारे में पीर सदरुद्दीन ने तुम्हें गिनान में समझाया है, उसके मुताबिक चलो। Now this is beautiful फरमान which has been understood in a different ways, जो कि कभी-कभी हमें limitation में डालता है। So remember, let's start from the near past. Golden Jubilee. इमाम का हुक्म आया कि Golden Jubilee में we all have to recite Hadith Saklan. कि Prophet Muhammad has left two hefty things for us: book and his progeny. Why would Hazrat Imam do that? इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने कहा कि भाई जो मौला अली की जो किताब थी पीर सदरुद्दीन ने हमको गिनान में दे दी है, तो गोल्डन जुबली में इमाम ने सिर्फ ये क्यों नहीं कहा कि चलो तुम गिनान की स्टडी करो, गिनान पढ़ो? इमाम ने हदीस सकलैन क्यों दी है? वी गॉट टू आस्क क्वेश्चन, राइट? पूछेंगे नहीं तो समझ कैसे आएगा? क्या वजह थी कि इमाम ने हमें रिमाइंड कराया कि पैगंबर दो चीज छोड़ के गए हैं, एक किताब और मेरी इतरत, आग। तो आज ऐसा क्या हुआ है दुनिया में जो पीर सदरुद्दीन के जमाने में नहीं था? इसका जवाब बहुत आसान है। Those who are seekers, they know कि somehow nowadays we have तावील of Quran, जो इमाम पीर सदरुद्दीन के जमाने में नहीं थी। पीर सदरुद्दीन के जमाने में गिनान थे, क्योंकि जमात इंडो पाक में थी, हिंदू मजहब से कन्वर्जन था,
उस जमाने में गिनान सिखाए जा रहे थे, गिनान से तालीमात दी जा रही थी, गिनान से ही के जरिए से कुरान की तालीमात, इमाम की पहचान। सदरुद्दीन का जमाना 500-600 इयर्स बिफोर। आज ऐसा क्या हुआ है कि हाजिर इमाम ने गोल्डन जुबली में हमसे कहा कि हम हदीस सकलैन पढ़ें? कुरान की तावील आ गई है। इमाम के गुलामों ने कुरान की तावील को ले आया है जमात के लिए। Are we looking for it? Are we learning it? तो गोल्डन जुबली में इमाम का ये हुक्म कि हमें खड़े होके हदीस सकलैन जो है वो सुननी। हदीस सकलैन को हमने सुना, यानी इमाम ने हमें रिमाइंड कराया। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने गोल्डन जुबली के बाद इस हदीस को समझने की कोशिश की? टुडे वी आर सिटिंग आफ्टर डायमंड जुबली एंड दिस वाज इन गोल्डन जुबली। कितने साल हो गए? एंड देन इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के फरमान से जो मौला ये फरमाते हैं कि मौला मुर्तजा अली के पास 10 पारे थे, और ऑफ कोर्स उस्मान के पास लेके गए। उस्मान ने उस किताब में नहीं डाला, क्योंकि उस्मान जो थे वो पॉलिटिकल लीडर थे, दुनिया की पावर चाहिए थी उनको। मौला अली को दुनिया की पावर से कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तमाम कुरानी आयतें जो पैगंबर पे नाजिल हुई थी, जो 10 सिपारे थे, वो मौला अली के पास थे, और उन्होंने मौला अली की किताब का जरूरत नहीं है। कौन कहता है ऐसे जरूरत नहीं है? अपने आप पे जो लोग घमंड करते हैं ना, वी आर एवरीथिंग, वी नो एवरीथिंग, वी डोंट नीड यू। ऑफ कोर्स जो इमाम को नहीं पहचानेगा वो यही करेगा। तो कुरान में बड़ी अजीब व गरीब आयत है। कुरान में एक आयत है, वमा कदरही हक्का कदरही, समथिंग लाइक दैट। पूरी एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं है हर चीज को। तर्जुमा ये है, ट्रांसलेशन ये है कि लोगों ने खुदा की कदर नहीं की। अरे कहाँ खुदा और कहाँ लोग? कोई कंपैरिजन है? कोई देयर इज नो, लिटरली खुदा कहाँ, हम कैसे खुदा की कदर ना करें? लेकिन अगर हम जानते हैं कि मेरा मौला अली अल्लाह है, मौला की लोगों ने कदर नहीं की। मौला ने हिदायत दी, मौला लेकर आए कि देखो तुम कुरान कंपाइल कर रहे हो, ये 10 सिपारे भी ले लो। मौला की कदर नहीं की लोगों ने। तो क्या हुआ? इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने हमें रीअश्योरेंस दिया कि पीर ने गिनान में वो तमाम तालीमात हमें दी। अगर आज हम पीर की तालीमात को आज के जमाने में देखते हैं, तावील की रोशनी में गिनान को देखते हैं, तो पता चलता है कि पीरों ने गिनान के अंदर कुरान की मोटी मोटी तालीमात, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स, अर्श कुरश, असवारी, वो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हमें बहुत ही लिमिटेड वेज में बता दिए। उन लिमिटेड वेज को खोलने के लिए, समझने के लिए जो तावील है कुरान की, वो हमें हेल्प करेगी जो पीर हमें समझा रहे हैं। जब तक हम कुरान की तावील को आज जो आ गई है हम हासिल नहीं करेंगे, फ्रेश नॉलेज को, तो जो पीरों की गिनान में आज भी हम स्ट्रगल करते हैं समझने को, वो हमको कैसे समझ में आएंगे? तो पीरों की गिनान तो ऐसे हो गए जैसे एक तरह से ताले लगे हुए हैं। उन तालों की चाबियां जो है वो कुरान के अंदर है। हाँ, बहुत सारे जमात में ऐसे लोग हैं कि इन तालों को वो हिंदू माइथोलॉजी और हिंदू कॉन्सेप्ट से खोलने की कोशिश करते हैं। एक वक्त तक ये दुरुस्त था, एक वक्त तक ये दुरुस्त था, आज ये दुरुस्त नहीं है। इसीलिए अगर हम गौर करें, बहुत सारे गिनान जो है जमात खाने के अंदर बैन कर दिए गए। बहुत सारे गिनानों के अंदर वर्ड्स चेंज कर दिए गए। हरी हरी का वर्ड चेंज करके शाह का वर्ड लगा दिया। व्हाई? बिकॉज जमात इज गोइंग टुवर्ड्स हिंदुइज्म। वो इस्लाम मजहब को हिंदू रिलीजन के अंदर जाके ढूंढ रही है। वी आर नॉट हिंदूज, वी आर मुस्लिम, वी आर स्माइलीज। तो इंस्टीट्यूशन बेचारी क्या करे? जमात को सिखाने के लिए उन्होंने गिनान बैन कर दिए या गिनान के वर्ड्स चेंज कर दिए, और जो ओरिजिनल रीडर्स हैं, सिंगर्स हैं, दे विल रीड द ओरिजिनल वर्ड्स, जिसमें हिंदू लैंग्वेज, हिंदू वर्ड्स आते हैं। ये तमाम एक्शंस को अगर हम बैठ के समझे तो पता चलेगा कि इमाम का जो हुक्म है हमारे लिए वो ये है कि बातिन को समझना है, मग्ज को समझना है। अगर मग्ज को समझने के लिए जो हमको मेहनत करनी है, उसके लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आज तक हमने फरमान की स्टडी की है, अल्हम्दुलिल्लाह, अभी कुरान को समझना पड़ेगा ताकि फरमान को ज्यादा समझ सके।
अभी तक अगर हमने गिनान को समझा है तो गिनान की ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए कुरान की ताबीर को समझना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेश नॉलेज आज हमारे पास है, कल नहीं थी। कल हमारे पास इतनी एजुकेशन भी नहीं थी जितनी आज हमारे पास है। तो ये तमाम बातें जब हम गौर करते हैं, पॉइंट से पॉइंट को जब मिलाते हैं, तो समझ पड़ता है कि हमने तो इन फरामीन को समझा ही नहीं है। हमने तो इन फरामीन को जिस तरह समझना चाहिए था समझा ही नहीं है। इसकी वजह यह है कि हमारा मजहब जो है वो डायनामिक है, वक्त के साथ साथ चलता है। इमाम की गाइडेंस वक्त के साथ साथ चलती है। अगर हम वक्त के साथ चल के नहीं समझेंगे इस टाइम के अंदर, हम पीछे रह जाएंगे। हिस्ट्री जो है वो हमें मदद करती है प्रेजेंट को समझने के लिए, इसलिए हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है स्टडी करना। लेकिन हिस्ट्री के बाद प्रेजेंट को ना समझना, उसकी स्टडी ना करना इनकम्प्लीट टास्क है। तो आज अगर हम ये 1893 का फरमान पढ़ रहे हैं, इट्स ब्यूटीफुल बट स्टिल इट्स पास्ट। ये शब्द जो है वो पास्ट में ले गया है। आज इमाम की क्या फरमान है, आज इमाम की क्या दो मणि है, आज जमात खाने में हम क्या सीख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। तो हमको कल को आज को मिला के अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालना है और आगे बढ़ाना है। फिर जब हम फरामीन को पढ़ते हैं और समझते हैं तो लगता है कि या मौला, तूने इतना इल्म हमारे लिए छोड़ा और हमने इसको समझा ही नहीं। मौला फॉरगिव अस मौला, कि हम तो गुनहगार हैं, हमसे तो वो शुक्रगुजारी हुई नहीं, हम तो वो भिखारी बने ही नहीं जिसको तू इल्म देने के लिए राजी है। या मौला तू हमें ऐसी तौफीक दे, ताईद दे, हिम्मत और यारी दे मौला, कि हम हकीकी तौर पे ऐसे भिखारी हों, हाथ जोड़ के तुझसे मांगे, और जब तू हमारे पास आ इल्म देने के लिए, हम पहचान भी जाए, हम जान भी जाए, उस इल्म को ले भी ले, तो हमारी तरक्की हो और हम तुझसे करीब आ सकें। तो यहाँ पे हम रोकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फरमान हमने कंप्लीट किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट फरमान के साथ कंटिन्यू करेंगे। अगर दोस्तों के पास कोई क्वेश्चंस हो, वी कैन डील विद इट। યાલી મદદ નિયામતભાઈ, जी मलाई मदमा, હું અમીદાર બોલું છું. મને બહુ મજા આવી ગઈ મૂસાનો દાખલો સાંભળીને. વર્ષો બાદ મને યાદ કરાવ્યું તમે, ને તમે હદીસ ને કુરાન થી સમજાવો છો એટલે વધારે સમજ પડે છે. હું તો અત્યાર સુધી જે કઈ હતું એ ફરમાન ને જ્ઞાનમાં હતી. તો એક જ્ઞાન બી છે, હવે મને પૂરું ઉપરની કડી નથી, આજ ફર્સ્ટ કડી. તો એમાં બી આ દાખલો છે જ્ઞાનમાં કે 6 મહિના ને 6 દિવસ કે 6 મહિના ને કે કેટલા દિવસ રસોઈ પકાવી, મીઠું તીખું બધું ને પછી ગલીએ ગલીએ બધું સજાવટ કરીને બધું પૂરું જ્ઞાન છે એનું ને. પછી એમાં એ આવે છે તો પછી દાસીને કહે છે કે ત્રીજી વખત આવે છે ને તો દાસીને કે इसको बासी भात पड़ा वो दे दो फ्रिज में, ऐसा जो है ना कुछ यही दाखला है, आपने बोला वो। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल जी। तो अगर फर्स्ट कड़ी आपको याद होगा तो जरा से प्लीज मेरे को दिखाओ तो मैं ज्ञान ढूंढ के मेरा ताजा करूं। नहीं याद है माँ, मुझे नहीं याद है। अगर आपको मिले जब भी याद आवे ना तो आप तो ज्ञान ढूंढ के वापस ताजा करूं मैं। मुझे दाखला याद था, मुझे गिनान की कड़ी तो नहीं याद थी, लेकिन बहुत मजा आएगा अगर आप गिनान ढूंढेंगे तो कभी हम गिनान भी डिस्कस करेंगे, मजा आएगा। हाँ हाँ, तो मैं ढूंढती हूँ अभी, पर मेरे को ना फर्स्ट कड़ी नहीं याद आती अभी। कभी से आपने बोला ना तभी मेरे मगज में आया कि मैंने हिस्ट्री में भी पढ़ा है, बुकों में भी पढ़ा है, तो बुकों में पूरी डिटेल नहीं थी, ये जो ज्ञान है ना इसके अंदर पूरी डिटेल थी। इंशाल्लाह आप ढूंढेंगे, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। बस दुआ करो मिल जाए, या अभी आज जो सुनते वो कोई को पता हो तो बतावे तो मुझे जरूर जरूर बताना। आमीन आमीन, यस यस, थैंक यू माँ, थैंक यू। और कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन? નિયામતભાઈ ક્યાંથી સવાલ હોય તમે સમજાવો છો એવું કોઈ સવાલ બાકી જ નથી રહેતો, કોઈ અમે કરીએ તમને સવાલ? અમારા માટે વધારે તમને ઇનામ આપે. આમીન માં આમીન, તમારી દુઆથી ચાલુ છું. હવે એક ક્વેશ્ચન તમે કીધું ને તો આ ક્વેશ્ચન આવી ગયું છે. Can you explain a little bit more about the 10 siparas and 30 siparas? So actually, if you honestly ask me, there is another farman of Imam Sultan Muhammad Shah. Maula says कि इनके पास
30 सिपारे हैं, लेकिन ये इमाम को छुपा नहीं पाए। यानी कि कुरान के अंदर अगर तावील की रोशनी में कुरान को देखा जाए तो कुरान के अंदर एक्चुअली there are 6,666 verses. Each verse is actually about Imam. If you understand the Tawil, each verse. तो इमाम का ये फरमान है कि उनके पास 30 सिपारे हैं, लेकिन वो इमाम को उसमें से नहीं निकाल पाए. They tried their best. For example, let me give you example. Because it was political collection, right? उस कुरान को जो कंपाइल किया था वो political reasons के साथ था. तो जैसे हम नाद अली की तस्वीर निकालते हैं, it's a hadith कुदसी, meaning that this was supposed to be in Quran कि नाद अली को पुकारो, अली को पुकारो. ये we say it as smiley Shia, we all say it, but Quran में नहीं है. Another one which is La Fatah illa Ali la Saif illa Zulfikar. It is hadith Qudsi. Hadith Qudsi meaning that it was a revelation to Prophet Muhammad, and whatever was revealed to Prophet, it is part of Quran. So this should be in Quran. La Fatah illa Ali, Nadi Ali, this should be in the Quran, but it is not. But Imam says, Imam Sultan Basha says that even though they tried to remove Imam from the Quran, but they are truly unsuccessful. Why and how? In the light of Ta'wil, if one were to study Quran in the light of Ta'wil, believe me, each verse is about Imam. But one has to study not the translation, but the Ta'wil. Translation has lots of errors. And yes, there are few words which are changed too, but it doesn't affect us because we are seekers of batin. We are batini tariqa follower. We are not the physical tariqa follower. But yes, we do need to look at the things physically. Quran खोलना पड़ेगा, transliteration पढ़ना पड़ेगा, translation पढ़ना पड़ेगा, so we can understand the ta'wil. Once we understand the ta'wil, we would see it's all about Imam. But why and how we can see that? Kyun? Because we are entering in Quran with Amar of Imam, with Hidayat of Imam, with Imam's wish, Imam's desire. Whole Quran is about Imam. Whole Quran is about Imam. But it becomes easy and possible for us because Imam ki duashish hamare saath hai. Those who study Quran without Imam, they don't know anything. They can memorize Quran, whatever. They can read tafasir after tafasir, but they are not going to get the essence. The batin is not for them. We are the true followers of Imam, and Quran is our book. So that is why, if we were to look at it in that way, it does not matter that they did not include the 10 separa. 10 separas were about Maula Ali. We already know Maula Ali's importance. But now we are entering into Quran in these 30 sections in which it seems for them that they have taken out Maula Ali. But when we enter Quran with Maula's Amar, Maula's Duashis, actually the seekers will find only praises of Maula in the Quran. Believe me, it's praises of Maula. Even when you study the scary scenes, right? Jahannam ke jo scenes hai, if you were to study those verses in the light of Ta'wil, please hear me out. In the light of Ta'wil, not translation, not transliteration, but with Ta'wil, you will only see praises and the mercy of Imam. That is why it is very important कि हम तावीली इल्म, हकीकी इल्म को लें कुरान का. फिजिकली कुरान को ना याद करना है, ना ट्रांसलेशन पढ़ना है. इल्म की क्लासेस में जो कुरानी वर्सेस हमें समझाई जाती हैं तावील के साथ, उन्हीं को पढ़ना है, उन्हीं को समझना है. इसके अलावा कुछ स्टडी नहीं करना है. इसलिए बार बार आप ये शेर सुनेंगे, हाफिज कुरान नहीं मैं, आशिक कुरान हूं मैं, आया है कुर्सी में मुझको जुमला कुरान याद. We do not need to memorize Quran. We do not need to know Arabic. If you know it, wonderful. But if you don't, it's all right. It's not going to limit us in any ways. Why? Because we are entering in Quran with love of Maula Baba. And Maula will hold our hand and he will teach us. But remember, we have to come out of the comfort zone. अभी तो कुरान लेने में घबराहट होती है, फिर कुरान को हाथ लगाने में घबराहट होती है, कुरान को खोलने में घबराहट होती है. तो मुश्किल है ना. We need to come out of the comfort zone ताकि जो है हम आज की
टाइम की रोशनी में तावीली इल्म जो हमें मिल रहा है उसको लेके हम कुरान के अंदर उतर के कुरान को समझे, देन वी विल हैव सच अ जॉय स्टडीइंग कुरान। क्योंकि इमाम की तारीफ में हम क्यों खुश नहीं होंगे, तो बहुत खुश होंगे, हम इमाम के आशिक हैं। हमारा दिल चाहता है बस कोई इमाम की तारीफ करता जाए, हम सुनते जाए, दिन रात और रात दिन हो जाए, राइट? दैट्स हाउ वी लव इट, राइट? हमको मौला की तारीफ चाहिए। कुरान पूरा इमाम की तारीफ से भरा है, in the light of Ta'bir only, nothing else. So I hope that this helps you. Thank you. Okay, you're most welcome, ma. You're most welcome. या अली मदद भाईमा। जी मेरी जान। भाईमा ऐसा है ना, मैंने ऐसा सुना है कि अगर पूरे फरमान अगर हम पढ़ते हैं और उसकी स्टडी करते हैं तो इनफ हो जाता, अपने को कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हाजरी माम है अभी, तो फरमान इनफ है, ऐसा मैंने ऐसा सुना है। तो इसके ऊपर कुछ रोशनी डालो ना भाईमा। मैंने भी सुना है, इसलिए मैंने एक लेक्चर में बोला कंफर्ट जोन के बाहर आना पड़ेगा, राइट? कि देखो, एक सुना है और एक आप फरमान खुद पढ़े, स्टडी करें। अभी हमने ये फरमान पढ़ा, इमाम ने कितने खुले शब्दों में फरमाया कि अगर हम फकीर हैं, अगर हमको चाहिए तो घर पे बैठे रहेंगे, मांगने नहीं जाएंगे तो भूखे मरेंगे। मतलब क्या पता है कि अभी मेरे पास भी फरमान है, दिस इज इनफ फॉर मी, आई डोंट वांट टू लर्न मोर। ठीक है, भूखे रहो। किससे भूखे रहेंगे? जो तावीली इल्म मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा, भूखे रहो, इट्स योर चॉइस। मौला बोलते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तुमको दावत दी गई थी, तुमको बताया गया था कि खाना मिल रहा है, अब मेहनत नहीं करनी है, बाहर नहीं, इट इज इनफ। मोमिन के लिए कब इनफ होता है? मोमिन को तो और चाहिए, और चाहिए। एक आशिक होता है, एक मस्त आशिक होता है, उसको जब शराब का नशा होता है तो वो कहता है मुझे बस नहीं, साकी पिलाते जाओ पिलाते जाओ, बस नहीं करो, कि क्या कहते हैं, मैं खाने को बंद ना करो। ऐसी हमारी मिसाल है कि देते जाओ, हम पढ़ते जाए, आगे बढ़ते जाए, बस रुके ना, बंद ना हो। तो फरमान कैसे इनफ हो गए? फरमान के अंदर ये कहा गया है कि कुरान को पढ़ना है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये फरमान साइड में रख दो, ये वाला फरमान पढ़ते हैं। डू वी नॉट डू दैट? क्या फरमान में नहीं है? आप पता है गुलजार, आप मेहरबानी करके, मैं नवीन साहबा से गुजारिश करूंगी कि आप जो है ना कल कुरान इज फॉर स्माइलीज वो बुक, वो लेक्चर जो है डालें। एंड आई वुड रिक्वेस्ट जिनको ये दिल में है कि कुरान के बारे में इमाम का फरमान नहीं है, I have quoted इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमान, हाजरी इमाम फरमान विथ रेफरेंसेस। तो आप क्या करें, उन रेफरेंसेस को लें, वो फरमान ढूंढे और आप पढ़ें, तो आपके दिल में यकीन आएगा, और जो आपने सुना हुआ है ना वो आपके दिमाग से उतर जाए, क्योंकि उसको उतारने की जरूरत है। जो सुना हुआ है, जो दिमाग में चिपक गया ना, उसको खुद की आंखों से, खुद की जबान से जब उस फरमान को पढ़ेंगे तो दिल के अंदर भावना जागेगी, और मेहनत भी होगी ना, खुद की मेहनत होगी, इमाम की मदद भी आएगी। क्योंकि इमाम का ये कहना यही है कि घर बैठे रहेंगे तो थोड़ी खाना मिलेगा। फिर मौला कहते हैं मेरा कसूर नहीं है, तो दिस इज नॉट इनफ फॉर अस टू वेक अप। और फिर इमाम ने ये भी बता दिया कि अगर अरबी से डर लगता है तो हमको अरबी से कोई लेना देना नहीं है। इट्स नॉट अबाउट लैंग्वेज, इट्स अबाउट द तावील। उसके अंदर जो मग्ज है, बादाम का छिलका खाते हो और बादाम को फेंक देते हो, इमाम ने क्या नहीं फरमाया? आई होप दिस हेल्प्स। थैंक यू भाईमा। मतलब कुरान पढ़ रहे जब भी तो हमारी फर्मा बरदारी कंप्लीट हो रही, यानी गिनान, कुरान और फरमान हम तीनों कंप्लीट पढ़ेंगे तभी हमारी फर्मा बरदारी कंप्लीट हो रही, राइट भाईमा? जी बिल्कुल। थैंक यू भाईमा। इनफैक्ट व्हाट आई से कि अगर आप कुरान की स्टडी करेंगे ना, क्योंकि गिनान फरमान हम पढ़ते रहे, हम हमारी उम्र है, वी हैव बीन स्टडीइंग गिनान फरमान, जो नहीं पढ़ा हमने कुरान, तो कुरान की जब तावीली नॉलेज ले लेते हैं हम, कुछ हद तक भी, कुछ दर्जात तक भी लेते हैं, बिलीव मी, फिर आप अगर गिनान पढ़ते हैं, फिर आप अगर कुरान पढ़ते हैं, तो आप खुद हैरान हो जाते हैं, अरे ये गिनान तो मैंने कई दफा पढ़ा पर कभी समझा ही नहीं था आज तक। क्योंकि कुरान की तालीम आपको मदद करेगा उस फरमान को, गिनान को समझने के लिए। तो हम जो है ना वो ये ना समझी है, भेदभाव है कि भाई कुरान हमारी किताब नहीं है। कुरान और इमाम जो है वो एक साथ है, ता क़यामत तक साथ रहेंगे। तो जो चीज हमारे इमाम के साथ है तो हमें क्यों ना प्यारी हो।
ईमान के साथ है तो हमें क्यों ना प्यारी हो, ये लैक ऑफ नॉलेज है। आरईसी में थर्ड सेमेस्टर पूरा कुरान शरीफ के ऊपर ही है, पूरा कुरान का ही एक्सप्लेनेशन होता है। क्यों लोग ऐसा बोलते हैं कि कुरान नहीं पढ़ना है? नहीं पता होगा ना, उनको सेकेंडरी पता नहीं करिकुलम में पूरा थर्ड सेमेस्टर पूरा कुरान का ही होता है। और अभी स्टेप की भी एक बुक है, कुरान एंड इट्स इंटरप्रिटेशन, यस यस आई हैव सीन दैट, तो यस वहां से भी शुरू कर सकते हैं पढ़ना वो लोग, कुरान एंड इंटरप्रिटेशन की बुक से भी, स्टेप की बुक। बिल्कुल। थैंक यू मुनीरा। देखो मुनीरा को मालूम है कि कुरान पढ़ना चाहिए, तो वी आर सो लकी एंड ब्लेस्ड कि हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जिनको मालूम है कुरान पढ़ना चाहिए। शुक्र मौला, वी नीड मोर पीपल लाइक हर, कि हम सब कुरान की स्टडी करें। शुक्र मौला। एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट? छुट्टी करें इंशाल्लाह, अगले हफ्ते मिलेंगे, नहीं कल ही मिलेंगे भाई फरमान के लिए। फरमान का इंटेंशन आज जो है 35th डे है, 5 days लेफ्ट। इंशाल्लाह हमारा ये इंटेंशन खत्म होगा 5 दिन के अंदर। एंड थैंक यू टू दोस फ्रेंड्स हु आर जॉइनिंग एंड रीडिंग फरमान, बहुत मजा आ रहा है। ऑलराइट, थैंक यू याली मदद, याली मदद, थैंक यू। याली मदद शबनम, याली मदद, याली मदद मदद नसीमा, बधाई ने याली मदद। याली मदद ना याली